Hey everyone, I hope you all are doing well since we met last week for our orientation. Thanks to Android Compose Cam, we are back with our first event for the year. You must be wondering what is Android Compose Cam. So, it is a series of peer group learning sessions or hands on workshops organized and facilitated by a Google Developer Student Clubs for the campus, for the community members to gather knowledge around the basics of Kotlin, building UIs in Compose, and more. So, what is so special about it? So we'll be learning using Kotlin and newly launched Jetpack Compose launched on July 28th last year. Android has been a part of our lives for a few years now, and I would like to describe it as a mobile phone OS based on modified version of Linux. Android needs no new introduction as we all have used an Android device or application once in our lifetime. More into Android dev. Java has been ruling Android development since long, but in 2017 Google announced Android using Kotlin. So what is Kotlin? Kotlin is described as better language than Java while being almost same as Java. So moving on next to our Android facilitator, Niranjan, who is going to take our session today. Niranjan, over. Thank you, Gaurav. So, hello guys. So, how are you? Please comment in the chat box. So, let's start with the Android Compose Camp. Yes, okay. So, today's actually हम लोग आज क्या करेंगे कि simple. Okay, let me first share my screen. Am I audible, right? Yeah, Niranjan, you are audible. Okay, Yes, yes, go ahead. okay. And my screen is visible. That is visible now. Okay. So, आज हम आज पहला सेशन है तो आज हम एक साथ तीन चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे। तो पहला है हमारा कॉडलिंग लैंग्वेज जो कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स वगैरह हम आज देखेंगे। सो एंड उसके बाद थोड़ा एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कैसे क्या होता है। Just a minute. या सो उसके बाद हम देखेंगे कि एंड्रॉयड एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे काम करता है, उसका जो फीचर्स है, उसका जो आइकन से, उसका जो सिंटैक्स है, ठीक है, मतलब जो यूआई डेवलपमेंट है उसका, तो कहाँ से क्या होता है, तो एंड्रॉयड के बारे में थोड़ा जानेंगे। एंड देन उसका बाद हम देखेंगे कि कैसे एक जेटपैक कॉम्पोज के थ्रू हम यूआई डेवलपमेंट को ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, राइट। So first, move on to our Kotlin sessions. So basically, look, Kotlin says that Kotlin is a modern programming language that makes developers happier, and it's a very true thing. Okay, तो अगर हम जितने Kotlin के ऊपर काम करेंगे, Android डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हम इसको जानेंगे कि इसका पावर कितना है। ठीक है, देख सकते हो कि कॉडलिन एक मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल लैंग्वेज है। इसका मतलब अब iOS एंड एंड्रॉयड एक साथ साथ तुम इसके साथ ऊपर काम कर सकते हो। एक सर्वर साइड भी लैंग्वेज भी है, इसके साथ तुम वेब फ्रंट एंड भी कर सकते हो, एंड डेफिनेटली एंड्रॉयड ऑल्सो। एंड इसके ऊपर तुम डेटा साइंस वगैरह का कुछ कर सकते हो, एंड मल्टी प्लेटफॉर्म अदर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म फॉर। So this is the thing, and so let's try Kotlin for as a simple. So I'm just not doing here. Actually, I prefer ID. So अगर आप चाहते हो कि आपका जस्ट कॉटलिन का टेस्ट चाहिए कि कॉटलिन कैसे काम करता है, या फिर जस्ट जानना है सिंटैक्स वगैरह, तो तुम कॉटलिन के वेबसाइट पे आकर यहाँ पर प्ले बटन है, आई कैन प्ले टेक्स्ट देन प्ले ग्राउंड। ओके, तो अगर इसमें तुम जाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक बाय डिफॉल्ट तुमको एक आईडी मिल जाएगा कॉटलिन की तरफ से। तुम यहाँ पर खुद का कोड लिख सकते हो एंड रन भी कर सकते हो इधर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर तुम डेवलपमेंट की तरफ आना चाहते हो और कॉटलिन को मोर एक्सप्लोर करना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ आईडीज। तो आईडी यूज करेंगे मैं भी। तो लेट्स स्टार्ट विथ आईडी। सो दिस इज इंटेलिजेंट प्रोवाइड बाय jetpack. No, actually intelligence, just a minute. So you can download it from JetBrains. Okay, so yeah, here the all the tools are available. Okay, so if you go developer tools and
ID IntelliJ IDEA. So this tool I'm using for Kotlin code, and you can here you develop your Java code also. This is the IntelliJ IDEA, so you can download it from download and use this community version, not ultimate, right? It is a free version of IntelliJ. So let's download this from here, and I'm not downloading now because I have already. So from here you can download it. Then let's start with Kotlin first. Okay, okay, just a minute. Just a second. Okay, let's start. Okay, so first हम देखते हैं कि मेन ये वाला जो सिंटैक्स है बाय डिफॉल्ट जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो कुछ पेटी फाइल बनाते हो तो ये वाला कोड पहले से रहता है, तो ये डिफॉल्ट कोड है, ठीक है। तो पहले चीज जो है पैकेज ट्यूटोरियल, तो आप देख सकते हो कि मैं मेरा जो लोकल डिवाइस के अंदर ट्यूटोरियल करके एक फोल्डर है, उसके अंदर एक फाइल है test.kt। तो ये हमारा फाइल जो है उसका नाम test.kt है। एंड पैकेज मतलब एक वे ऑफ पाथ है, तो जहाँ पर ये स्टोर है ये वाला पर्टिकुलर फाइल, तो ये हमारा पैकेज हो गया। अगर जो जावा में अगर कोड करते हो तो उसमें इम्पोर्ट फंक्शन कम करता है इम्पोर्ट। एंड व्हाट इज मेन? सो मेन इज अ पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ से कोड का स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। हर एक कोड, जब भी कोड फाइल्स लिखते हो, कोई प्रोग्राम रन करते हो, तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन से। मेन के अंदर जाएगा एंड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा वन बाय वन। ओके, दिस इज द थिंग्स ऑफ मेन। ओके, so now the syntax, right? So first thing, you did every programming language like C, C++, Java। क्या कहो कि जब भी पहला कुछ लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें तुम क्या करते हो, एक प्रिंट लाइन को प्रिंट करते हो, राइट? सो पहला चीज हम भी यहाँ पर यही करेंगे कि एक लाइन को फर्स्ट प्रिंट करेंगे। सो इसके लिए हमारे पास एक मेथड प्रीडिफाइंड है, प्रिंट। ओके, yes, let me little bit zoom। yes, तो तुम देख सकते हो कि मैं प्रिंट लिखने के बाद एक प्रिंट के अंदर एक छोटा सा एरर आ रहा है कि अ, तो एरर का मतलब ये है कि प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ लिखना होगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो एरर रह जाएगा, तो इसके अंदर लिखना होगा। तो लेट्स सपोज हेलो, ओके, so I'm writing this, right? And for run this program, particular program, you have multiple options. You can run it from here also. Just click on the play button and run kt file. That is your selected file over here. Its build is running, so wait for a sec। uh, First time it takes a little time, okay, okay. So you can see that this line is printed over here, okay, no problem। सो प्रिंट, ओके। तो अगर इसके बाद हम और एक लाइन ऐड करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रिंट लिख कर उसके मैसेज प्रिंट करेंगे, लाइक हेलो कॉटलिन, ओके, हेलो। ओके, सो देखो यहाँ से तुम रन कर सकते हो, एक ऑप्शन से यहाँ तक। सेकेंड ऑप्शन है एकदम राइट साइड में, यहाँ पर से भी तुम रन कर सकते हो प्रोग्राम को, ठीक है। रन हो गया। The third things, right click on the editor, this white black space over here, right click on it and run from here also you can run। And the fourth thing is run from here, click on the run tab and this run option, and the fifth option is running from here also। So you can
choose any one of those, and the thing is the shortcut is shift F10. If you're using shortcut, so you can use shift plus F10. so this is the thing कैसे रन करना है प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रिंट वाला फंक्शन के अंदर। तो देखो कि मैं दोनों लाइन में एक प्रिंट फंक्शन किया, एक में हेलो वर्ल्ड है जिसमें हेलो कॉटलिन है, बट आउटपुट में अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आउटपुट में देख सकते हो कि ये जो लाइन्स है ना वो एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है, राइट, दूसरा लाइन में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमारे पास और एक मेथड डिफाइन है, जैसे कि प्रिंट एलन। आई एम जस्ट राइटिंग द फर्स्ट प्रिंट एलन। तो इसका मतलब प्रिंट कर दो, उसका बाद एक न्यू लाइन को भी ऐड कर दो, ठीक है। देखो अब ये हेलो वर्ल्ड ना नेक्स्ट लाइन में चला आएगा। लुक, नाउ द आउटपुट इज डिफरेंट, हेलो वर्ल्ड इन द फर्स्ट लाइन एंड द hello Kotlin is in the second line. So this is the main funda and main difference between print and println. Okay, so print means it's print in a single line, and println means it's print the line of sentence, then it's added a new line, then the next line of execute. Okay, so it is the same things. Println first print this hello world first, देन एलन एक न्यू लाइन ऐड कर दिया, उसका बाद हेलो कॉटलिन को प्रिंट कर दिया। ओके, आई थिंक गॉट इट, नो प्रॉब्लम ओवर आई थिंक। सो ओके, सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम एनी टाइम, सो यू कैन आस्क मी, ओके, बिकॉज चैट में मत बोलना कि मैं देख नहीं सकता, तो वहां पर जंप करके देखना होगा, माइक में बोलना, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग अबाउट प्रिंट, कुछ को प्रिंट करना है टर्मिनल के अंदर, तो ये एक चीज है हमारे पास। So now move to variable declaration. It's a very important thing in Kotlin, any programming language, and also an Android development part also. So in Kotlin you have two options to create variables. Okay, first one is using var keyword, var, and second one is value, means val keyword. So एक एक करके दिखाता हूँ। So first var a, the variable name is a equals to 10, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर तुम लोग कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, इस तीनों में से अगर कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, तो आप देख सकते हो वहां पर करते हो कि लाइक तुम इस तरह से कोड लिखते हो, int a equals to 10, राइट, तुम इस तरह से कोड लिखते हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जावा के अंदर भी ऐसा होता है, सी के अंदर भी ऐसा होता है, एंड सी प्लस प्लस के अंदर भी ऐसा होता है, राइट। बट इन Kotlin you can define is a var, and this value na a can contain any kind of value. That means we don't have to define the separate value, I mean separate data types for the things, because it's a very intelligent language. So if you said like this, enter and print the function a in the variables a, okay, तो यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। देख सकते हो कि 10 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगर मैं 10 को चेंज करके हेलो कर देता हूँ, ठीक है, तो अगर चेंज करूँ यहाँ से रन करूँ तो देखो कि हेलो प्रिंट हो गया, राइट। तो हमको खुद के एक्सप्लिसिटली हमको ये डिफाइन नहीं करना होता है Kotlin के अंदर कि एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, या फिर इंटीजर, फ्लोट, डबल, या कैरेक्टर, या बुलियन। हमको अलग अलग से डिफाइन नहीं करना होता है Kotlin के अंदर कि ये कौन सा टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं यूज करना चाहता हूँ कि मुझे भी याद रहे कि मैं इस वेरिएबल को एज अ इंटीजर डिफाइन किया हूँ या फिर स्ट्रिंग डिफाइन किया हूँ, तो उसके लिए सिंटैक्स थोड़ा अलग रहता है, ठीक है, ठीक है। मतलब अगर मान लो तुम एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रहे हो, तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर कुछ तुम बटन्स वगैरह लगाते हो एंड्रॉइड के अंदर, तो बटन तो एक सेपरेट टाइप्स हो गया ना, तो उसके अंदर तुमको खुद के
हिसाब से डिफाइन करना होगा कि ये बटन एक बटन टाइप का है, ठीक है। तो अदरवाइज कॉटलिन डजंट सेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले एक कोलन लगाएंगे, उसका बाद वेरिएबल्स का डेटा टाइप का नेम, मीन्स आई वांट टू स्टोर ए इन एज इंटीजर, तो इंट, ओके। कॉटलिन में इंट आता है, हर एक वेरिएबल का टाइप्स जो होता है ना वो स्टार्टिंग लेटर कैप से होता है, क्योंकि ये हमारा एक्चुअली फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसके अंदर जो बेसिक डेटा टाइप है इंट वो वगैरह सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्लास के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर तुम जावा में रैपर क्लास वगैरह पढ़े हो तो ये चीज ज्यादा आसानी होगा समझने के लिए, ठीक है। तो देन हम इसके अंदर 10 असाइन कर देते हैं। अब देख सकते हो ये कोड भी एक परफेक्टली रन करेगा, 10 प्रिंट करेगा। तो देख सकते हो sorry, यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर इंड जो है ना, इंड वाला टेक्स्ट इसके ऊपर अगर होवर करूं तो एक मैसेज आएगा, एक्सप्लिसिटली गिवन टाइप इज रिडंडेंट हेयर। मतलब तुम लिख भी सकते हो, ना लिख भी सकते हो। तो इस तरह से हम, तो ये बोल रहा है कि ये जरूरत नहीं है कि एक मेंशन करो कि भाई मैं इंटीजर टाइप का हूँ, ठीक है। तो ये वो खुद से समझ लेगा कि मैं इंटीजर हूँ, तो मुझे मत सिखाओ, ठीक है, लाइक दैट। तो आई एम जस्ट ओके। तो मैं एक स्ट्रिंग से भी दिखा देता हूँ, लाइक ये एक स्ट्रिंग है। तो देखो स्ट्रिंग दिया तो इंटीजर नहीं सपोर्ट करेगा, तो इसके अंदर इसको भी स्ट्रिंग में चेंज करना होगा, लाइक Kotlin, okay. And if I run over here, it's printed Kotlin, right? Okay. So this is the thing. So you can remove all the things from here and you can print. Okay. Now the main property of var. Okay. You can reassign the value again if you want. Like, uh, okay. So like make another variable var b equals to. Let me change to its hello, and over here change to world, okay. ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूँ सिर्फ बी को, तो देख सकते हो कि ये सिर्फ वर्ल्ड को प्रिंट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये वाला, ठीक है। क्या तो अब क्या होगा, हम करेंगे क्या, हम चाहते हैं कि अब बी को जब वैल्यू है वो चेंज होकर ना कॉटलिन कॉटलिन, ठीक है। अगर मैं इस पे एक तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट एलन फंक्शन को यूज किया। एंड एक चीज तुम नोटिस कर सकते हो कि ये वाला जो लाइन है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो अगर तुम कुछ स्ट्रिंग टाइप के अंदर इस कोड के अंदर कुछ वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए वेरिएबल्स नेम के आगे एक डॉलर साइन को ऐड करना मैंडेटरी है। Otherwise, the string method na doesn't understand, cannot understand that what is the difference between these and those. I mean, अगर मैं इसको हटा देता हूँ एंड अब रन करता हूँ, तो देखा तुम हेलो बी प्रिंट होगा। तो अगर तुम ये नहीं लगाते हो डॉलर साइन, तो इसका मतलब वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो ये स्ट्रिंग के अंदर ये वाला डॉलर साइन लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हाँ, मेन पार्ट of the var is we can reassign the value. The value of b at the first time it is world. Now it's changed to Kotlin, right? So it is, if I comment this out and run the program again, so it's print hello world. In the console you can see it's print the hello world. And if I reassign the value of b as Kotlin,
So we can it's printed hello for you. This is clear. I think it's very much simple. Is a type of var. Okay, is a type of var. So now I want to change the var type to val, and you look, you can see over here a error is there. The error is val cannot be reassigned. मतलब अगर कुछ वेरिएबल्स तुमने वैल डिक्लेयर कर रहे हो ना, VAL, इट्स अ वैल्यू, इट्स अ शॉर्ट टर्म ऑफ वैल्यू. तो अगर कुछ वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट होता है ना, फाइनल होता है, लाइक 1 2 3, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है. तो अगर कुछ वैल के अंदर, बी के अंदर तुम कुछ वैल्यू दे रखे हो, लाइक मैं इसके अंदर पहले लाइन में असाइन किया हो वर्ल्ड, तो उसके बाद में हम बी को रीअसाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये अपना वैल टाइप का है, वैल्यू टाइप का है. The error shows like val cannot be reassigned. हम अलग से reassign नहीं कर सकते हैं एक val टाइप वेरिएबल का. ठीक है, अगर मैं इसको var कर देता हूँ तो आप देख सकते हो द एरर इज गॉन, राइट. तो ये बेसिक फंडा है var एंड val का. तो ये चीज थोड़ा समझ में आना चाहिए. ठीक है, ये दिमाग में रखना है. ठीक है, कहाँ पर val यूज करना है, var यूज करना है, कहाँ पर प्रिंट यूज करना है, कहाँ पर प्रिंट एलन यूज करना है. ठीक है, अगर आप पैटर्न प्रोग्रामिंग किए हो, लाइक स्टार से टेबल, लुक, ट्राइंगल बनाना, स्क्वायर बनाना, कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग किए हो, तो तुम सी में किए हो या फिर जावा में, दैट डजंट मैटर. जावा में अगर किए हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके एक फंक्शन है हमारे पास है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके एक फंक्शन है. तो उस हिसाब से करके हम पैटर्न प्रिंट करते हैं, राइट. So this is the main thing of this var and val and print. So you guys have any problem till now? So please mention on the chat box. If you have, please mention. So I think no problem is there. Okay. So this is the main things of variable declaration and print. Okay. Now move some basics of, you know that all the thing, how if work, if else work, else part work. It's just all the same things. I don't want to go deep in the all the things. But if you're doing a programming language like OOP is oops, so you have to know that other things, right? So I am not go deeper to it, but I want to show you that other things like how if else works, and in the Kotlin documentation from. Okay, so is the instance a comment. Okay, conditions. तो here you can see, अब तो देख सकते हो कि if else का किस तरह से यूज करना है. if बेसिक सिंटैक्स में भी इस तरह की सिंटैक्स यूज होता है. ठीक है, if लिखा और उसके अंदर जो कंडीशन होता है पैरेंथेसिस के अंदर, देन कंडीशन असाइन किया, देन एल्स पार्ट में हमारा जो सेकेंडरी, जो अगर नहीं होना, इफ एग्जीक्यूट नहीं करता, देन एल्स वाला एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए एल्स. ठीक है, ये बेसिक थिंग्स है कंडीशन वाला. तो ये हो जाएगा. तो मैं और नहीं दिखा रहा बिकॉज मुझे और चीज दिखाना है एक्चुअली. उसका ओप्स प्रोजेक्ट, ओप्स कॉन्सेप्ट भी थोड़ा क्लियर करना है, तो इसलिए मैं ये स्किप कर रहा हूँ. ठीक है, तो लूप्स. तो लूप्स, फॉर लूप्स यूज होता है, फॉर लूप्स है, वाइल लूप्स है. ठीक है, डू वाइल नहीं है इसके अंदर. तो लूप्स के अंदर क्या होता है कि अगर इटरेट कर सकते हो एक लिस्ट ऑफ, एक लिस्ट कलेक्शन से, उसके अंदर एप्पल्स, बनाना एंड क्विकी फूड्स है, एंड तुम आइटम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो इस आइटम वाला लिस्ट के लिए, एंड दिस आइटम इटरेट कर रहा है तुम्हारा इस आइटम के ऊपर. ठीक है, तो इसका आउटपुट अगर देखना चाहो तो यहाँ से तुम रन कर सकते हो डायरेक्टली, एंड इट्स प्रिंट लाइक दिस. ओके, अगर तुम इसके अंदर भी एडिट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. ठीक है, एंड अगर इसके अंदर एडिट करने का तो कर सकते हो, लाइक दिस वन. ठीक है, इस तरह से करोगे तो आ जाएगा. देखा, तो आइटम
में पहला बना एप्पल आया, देन बनाना, देन क्विकी फूड, ओके, कीवी फूड। तो दिस इज थिंग अबाउट फॉर लूप। यहाँ पर ना इन से डिनोट करता है, अगर कुछ किसी के अंदर जंप करना है, जाना है, इटरेट करना है, तो इन एक कीवर्ड है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल है इसके अंदर, तो देख सकते हो कि लिस्ट के ऊपर आइटम वाला एक ऑब्जेक्ट है, लिस्ट ऑफ इस लिस्ट के लिए, एंड इंडेक्स करके एक वेरिएबल्स है। वो क्या करते हैं, इंडिसेस के ऊपर एक एक इंडिसेस पे जाएगा और इंडिसेस का जो वैल्यू है वो प्रिंट करते जाएगा, ठीक है, 1 0 1 2 ऐसा ही कुछ है। देखो, आइटम एट इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स हमारा पहला 0 से स्टार्ट होगा and the value is this, okay, so we can use at this way. And using for while loop is a pretty simple and same as other programming language. This is a list, and while this is the condition, if this condition matched, then this part of code is execute, okay. So this is the while loops, and you can use this when expression, but इन द लेटर रेंज। अगर 1 से 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ करना है, तो अगर देखो, अगर मैं यहाँ पर ही थोड़ा एडिट कर देता हूँ, वैल हमारा 1 है एंड जाएंगे 1 से लेकर 9 तक, लाइक ए एक ऑब्जेक्ट है एंड जाएंगे हम x से लेकर y तक, y, एंड यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे a को, ठीक है। इसके बाद एक क्लास लगाकर ये दे देते हैं। अच्छा, इस नाम के लिए इसमें अच्छा, यहाँ पर इसका फोटो गलत हो गया, अब तो हो जाना चाहिए। नाम इज नॉट मेंशन, पता नहीं यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा। अगर तुम यहाँ पर देखो, तो अगर फॉर लूप से कुछ इटरेट करना है तो फॉर, तो नाम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, फॉर इन मेंशन करो एंड देन कहाँ तक कहाँ जाना है। वन से ये रेंज है, ठीक है, डॉट डॉट का मतलब हमारा रेंज होता है, जो कहाँ तक जाना है। एंड हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलन कर देते हैं एंड नाम को, ठीक है। तो अगर तुम नहीं प्रिंट करते, एक लाइन में आएगा कुछ तो तो देख सकते हो कि आउटपुट यहाँ पर दिखा रहा है, बट मुझे मालूम यहाँ पर क्यों नहीं शो रहा, समथिंग पता नहीं, ठीक है, तो होता है कभी कभी। तो देख सकते सेम लाइन ऑफ कोड, राइट, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, बट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो हम इस तरह से लेंथ को डिफाइन करते हैं कि रेंज मतलब एक फ्रॉम 1 to 10 तो जाना है, तो जिस डॉट डॉट वाला फंक्शन का यूज करना है ऑपरेटर को। अगर तुमको जाना है टिल 19 मीन्स 1 to 9, ओके, तो यू नीड टू यूज अंटिल का मतलब, अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू साइन आ रहा है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, अंटिल ओनली लेस देन 10 मतलब 10 के आगे तक ही जाएंगे, ठीक है, मतलब 9 तक। तो अंटिल का मतलब है 1 से लेकर 9 तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है, 10 नहीं आएगा इस केस में। अगर तुम चाहते हो कि डाउन में हम जाए, ठीक है, मतलब 10 से लेकर 1 तक, तो 10, देन एक फंक्शन एक कॉल है डाउन टू 1, okay, so you can see that 10 9 8 6 like this, and if you want like step करके जाए, like एक 2 से बाद 10 से बाद 8 हो, या फिर तो इसके बाद स्टेप वाला एक मेथड है, उसके अंदर 2 मतलब 2 2 करके आगे जाए, पीछे है,
10 8 6 इस तरह से प्रिंट हो टिल 1 तक। तो ये वाला हमारा रेंज का है। तो ये चीज हमारा फॉर लूप का हो गया, ठीक है। तो यही है बेसिक बेसिक ऑफ कोटलिन। तो मैं ज्यादा उसमें अगर अच्छा एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक मेथड्स को डिफाइन करते हैं कोटलिन के अंदर, ठीक है। हाँ नहीं कि क्लास करके दिखा देता हूँ क्योंकि क्लास में चाहिए एग्जैक्टली। तो क्लास मैंने क्लास क्रिएट किया है किए हो, ठीक है, क्लास ए। अगर तुम लोग जावा किए हो या फिर सी प्लस प्लस किए हो तो क्लास आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास एक कीवर्ड है, उसके हिसाब से हम एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्लास, सो दिस क्लास हैव ओनली वन फंक्शन कॉल्ड एम, ठीक है। तो ये वाला फन क्या है, फन फन का मतलब फंक्शन होता है एंड फंक्शन का नेम है एम, ठीक है। ये कुछ प्रिंट करेगा, ठीक है, लाइक प्रिंट एलन लाइक I am function m. I am function m. Okay. If I want to print this message over here, then how we can? So first initialize the class. So let's create a val because we don't reassign the value, so we can use val. So it's a small a is a type of a, okay, and this thing. So we initialize the a. देखो कहाँ कैसे ये हुआ है, हमारा वेरिएबल का नेम है एक ए और कह सकते हैं रेफरेंस है ए क्लास का, ठीक है। एंड उसके बाद हम ए डॉट एम करके ये वाला चीज प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर प्रिंट करूं तो देख सकते हो ये वाला लाइन प्रिंट हो रहा है कि आई एम फंक्शन एम, ओके। सो बाय दिस यू कैन प्रिंट दिस लाइन, ठीक है, एक क्लास के थ्रू। तो एक अच्छा बात है। तो ठीक है, तो बस इतना ही कॉर्डिंग को रहने देते हैं क्योंकि अब आगे जाके बार बार करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। मैं सिर्फ करूँगा, अभी सुनोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर आप साइड बाई साइड करते रहोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, राइट। तो इस हिसाब से हम करेंगे। तो basic syntax is this of Kotlin. So till now, if you have any queries, you can ask. So, do you have any queries? I think no, right? So Kotlin but no query. Okay. So everyone, okay. I think no query is. So now the main thing of this event, that is our compose camp, right? So okay, I'm actually opening it. Okay. So first thing first, this is Android Studio. Okay, this is Android Studio. ठीक है, मैं इसको ना बंद नहीं मिनी मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। ये तो हम पिछले वाला हमारा इंटेलिजेंट था, वो भी जेट ब्रांड के से है। और ये वाला एंड्रॉइड स्टूडियो भी जेट ब्रांड से बिल्ड है, ठीक है। जेट ब्रांड कंपनी का नाम है जो यूआई को डेवलप करता है। अगर आप पाइथन कर रहे हो तो पाइचम एक बहुत अच्छा आईडी है पाइथन के लिए। सो अगर वेब डेवलपमेंट करते हो तो वेब स्ट्रॉन्ग, वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा ऐसे है। रूबी डेवलपमेंट करते हो तो रूबी माइन। तो जिस तरह बहुत सारा एप्लीकेशन उन्होंने बना रखा है, सॉफ्टवेयर बना डिजाइन कर रखे हैं फॉर दिस काइंड ऑफ। सो एंड्रॉइड स्टूडियो भी उसी में से एक सॉफ्टवेयर है, एक आईडी है जो इसमें हम यूज करेंगे फॉर बिल्डिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन। सो बेसिकली दिस इज आवर एंड्रॉइड स्टूडियो टूल, ओके। तो कहाँ से क्या होता है, अगर यू आर वेरी न्यू टू एंड्रॉइड so you have to use it, you have to know the all the things over here, not all but requirement is there na, something you have to know. So this is the thing. So let's start with so you can see over here
some folders are there, right? There are two folders. Application like app folder. If I zoom नहीं होगा, देख सकते हो कि यहाँ पर ऐप एक फोल्डर है, एंड ग्रेडल स्ट्रीट करके और एक ब्रांच है, नॉट अ फोल्डर, इट्स एक्चुअली ब्रांच. ओके, इज अ रूट फोल्डर. ओके, तो वन बाई वन करके हम समझते हैं कि कैसे होता है. ठीक है, हम देखेंगे. तो पहले एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पहले वो जान लेंगे. ठीक है, तो अगर अब पहली बार, मुझे तो बहुत दिन हो गया, अगर पहली बार आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अगर कोई भी एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट नहीं है आपके पास, रिसेंटली आप डाउनलोड करते हो, तो आपका जो ऊपर जो स्क्रीन है वो उसमें ही लाइक इस तरह से कुछ एक पेज आएगा. ठीक है, और बहुत सारा चीज आएगा कि उसमें तुम देख सकते हो कि क्रिएट एंड्रॉइड एप्लीकेशन विथ फ्लटर विथ XML, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. But actually I am created all the things, so did not showing in here. But अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से ना करके यहाँ से करें, so simple go files, in the file tab, then go new. Look, this kind of things are over there. So new project is there, Flutter project is there. If you have Flutter plugins in your system, then only it shows, otherwise it doesn't show. Okay, so create new project, simple, click on new project. So these kind of things are appears, right? So no activities, base activity, empty activities. Okay, empty activities, full screen. अगर आप जीपे का कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हो एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ से ये बेसिकली टेम्पलेट्स. यू कैन सी इट्स अ बेसिक अ टेम्पलेट यू कैन यूज मच फर्स्टर. तो हम लोग इस बार पहली बार तो सिर्फ हम एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करके XML के थ्रू कर रहे थे ना. पिछले ईयर जब एंड्रॉइड स्टडी जब हुआ था, कॉर्लिन विद XML था वो, और ये वाला हमारा जेटपैक कंपोज आ गया, तो हम कंपोज एक्टिविटी बिल्ड करेंगे. ठीक है, तो सिलेक्ट दिस एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. चूज योर एप्लीकेशन नेम. ओके, and Kotlin is a primary language, so it's by default is selected. You can select your path also. And what is the, this thing is very much important, this is the minimum SDK. If you click on this button, list down button, so lots of things are there, like Lollipop 5 is there, right? Marshmallow, Nougat, Audio, PyQ, and the latest version 12, 11 and 12. 13 is not actually there. ठीक है, तो अप टू 12 तक है. तो बाय डिफॉल्ट ये 5 वाला लॉलीपॉप वाला सिलेक्ट रहेगा. बट आप देख सकते हो यहाँ पर एक कुछ इन्फो है, लाइक योर ऐप विल ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.8% ऑफ डिवाइस. अगर तुम लॉलीपॉप चूज करते हो, तो मिनिमम एसडी का मतलब ये होता है कि लॉलीपॉप के ऊपर जितना सारा वर्जन है, एक लॉलीपॉप एक लिमिट है, एक बैरियर है, इसके नीचे अगर कोई वर्जन रहता है तो उसमें ये एंड्रॉइड. Excuse me, Ranjan. Yes. We have a query in the chat box. If you could respond to that. Okay, no problem. I have a doubt why there are two print the function on the thing. So it's a print the function. Okay, so the thing is, I didn't understand this. Okay, so I'm delete this code for the first time. Okay, so just make I want to create some for loop. I think your there are two print function. तुम क्या वो फंक्शन वाला पूछ रहे हो या फिर प्रिंट वाला? प्रिंट फंक्शन, प्रिंट एंड ट्रांसफर द न्यू पर्सन द न्यू लाइन. ओके, प्रिंट एक बार समझना है, समझा? ठीक. ओके, सो लुक, प्रिंट क्या करता है कि तुम्हारा जो सिर्फ प्रिंट पहले देखते हैं, ठीक है, तो वो हेलो कर देता है.
इसको हेलो कर देते हैं। ओके, अगर मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, सिर्फ इसको हेलो, तो इजीली वो आ जाएगा। तो देख सकते हो हेलो आ गया, राइट? ठीक है। अगर मैं इसके प्रिंट वर्ल्ड करता हूँ, इसके इसके अंदर WO, ठीक है, तो मैं रन करूँ तो देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, बट इन अ सेम लाइन, राइट? ओके, बट इफ यू प्रिंट दिस हेलो in print ln, so first it print the hello, okay, then it added a new line on the terminal, then then it will print world in the new line. So if I run this program again, you can see that hello in the separate line and world is also in a separate line. Okay, so this is the main things of print and println, main difference between print and println. ठीक है। Another use of println in Kotlin, yeah, that is the thing. So this is the println. You actually added a new line. Also, you can do like this, like you have only print, okay, and you add a print line over here without any parameters, any string, anything. You can see like if you use print, you have to pass something in the parenthesis, otherwise it shows a error. Okay, but in println you don't have any requirement to pass anything in the parenthesis, but for the print you have to pass, right? So ओके, सो अगर मैं इसको करूँ तो आप देख सकते हो कि वो सेपरेट लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट हुआ हेलो, ये वाला हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद एक न्यू लाइन प्रिंट हुआ, ठीक है, ये कर्सर यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है, एंड देन उसका बाद वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड। सो दिस इज व्हाई दिस हेलो एंड वर्ल्ड इन द सेपरेट लाइन। ओके, आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। Okay, that means println can, yes, दिस इज द थिंग। एक्चुअली ये लाइन को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए ये यूज होता है बेसिकली, ठीक है, आई थिंक क्लियर। ओके, एपीआई, अच्छा, व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज अ थिंग्स ऑफ, it's a like a bridge from client and to in Android version. हाँ, we use it, but API means like it's a bridge between a client and server. ठीक है, अगर तुम एक चीज तुमको दिखा रहा हो तो तुम तब और क्लियरली समझ में आएगा। तो लुक, अगर मैं एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके ओके, मैं इसको फिनिश करके एपीआई बोल रहा हूँ, ठीक है, तो just wait for a minute. So if you select lollipop, then you can see it's your version, how many devices actually run. It's 98.8%. अगर choose and the higher version like audio, it's decreased, right? 88.2 version, 2%. And if I use 11, then it shows a 40%. That means if you want maximum audience to your Android application, then select the minimum SDK as the minimum API level, this lollipop, if you want maximum audience in your platform, right? So just by default it shows uh, select this lollipop, first wala, and then simply finish. It will build a project for you. I'm not building it right now because I already built this project. Okay, so first thing, what is manifest? Here in the app folder there is another folder, it is manifest, right? So manifest, if you familiar with XML, okay, if I open this, तो manifest क्या काम करता है कि एक डिरेक्टरी को वो
अलाइन करता है। देखो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए एक ही एप्लीकेशन एक्टिविटीज है, ये वाला मेन एक्टिविटी, ओके। और कोई एक्टिविटी नहीं है, जितना सारा एक्टिविटी आएगा ना वो यूआई थीम के अंदर आएगा। तो हमारे पास फिलहाल के लिए एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी। तो एप्लीकेशन क्या किया कि इसके अंदर एक ये वाला कोड ऐड कर दिया कि अच्छा इसके पास एक ही एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी, तो इसको ऐड कर दिया। ये चीज एक काम है इस मैनिफेस्ट का। और एक चीज इसका काम है कुछ परमिशंस के लिए। अगर आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज करते हो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, कुछ परमिशन दे आर नीडेड, लाइक internet permission, camera, and microphone. हाँ, these are permission we can set over here. ठीक है, तो इस तरह से तुम कर सकते हो इसके अंदर। Okay, so this is the manifest, and now the thing is, in the Java folder there is a, actually it's named as a package. It's our package, and this package have two things: UI theme, not necessary is a have color, shape, theme, types, not necessary for now, and it has a one our activity, that is main activity, that means this one, okay. So this is for Java folder, not required this one. The required is res folder. Res folder have four folders actually in between, okay. So drawable, in drawable folder it contain at like any kind of element, like if you have pictures, if you have some videos you want to put in your application, okay, audio files, image, gif, anything, any means any elements you want to put in your application from your local device, okay. So you put this in drawable folder. Or if you want to some icons, you want to put some icons, so if this put in the drawable folder. इट इज द फंक्शन ऑफ ड्राइबल। मिनीमैप इसका दो बट और एक ब्रांच है, लाइक आईसी लॉन्चर राउंडेड। मिनीमैप क्या करता है, आपका आइकॉन का जो आइकॉन है आपका सिस्टम के अकॉर्डिंग, आप देखे होंगे कि कुछ फोन्स में जो एप्लीकेशन का आइकॉन है वो स्क्वायर शेप में रहता है, राउंडेड कॉर्नर वाला। कुछ एप्लीकेशन वो सर्कल वाला रहता है, राइट। तो यहाँ से वो डिफाइन होता है कि कौन सा होगा। ये सारे जो एप्लीकेशन है ना, इमेजेस है, वो देख सकते हो कि राउंडेड कर्नर वाला है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ तो ये सर्कल वाला है, ठीक है। तो आपके फोन के अकॉर्डिंग, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कौन सा आपके सिस्टम करते हैं, ठीक है। अगर तुम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जस्ट कीप ऑन नाउ। So what are the values? You can add some colors on this one. Like if you want some color, right? So make a color of something like red. You want to pick a red, so you want to make this red. So you can create your own color, and you by this red, by this name red, you can use it in your activities. Okay, your color will define here. And this is the string. String means you can add a string with a short name. Okay, themes means your night theme and dark theme. This is the value folder, and this XML part is not required for now. It's a backup rules, and it is not needed for now. Okay, so this is the main four or three things. They are the manifest in the Java folder, and REST folder is the main things of application. Okay, and now the thing is Gradle. It is the main important thing. Okay, so what is the thing is, someone asked me about API, right? So if I open this, is ये वाला, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ना बहुत सारा कोड है। चलो इस सब छोड़ के एक बार लास्ट वाला चीज में आओ, पर डिपेंडेंसी। ये वाला जो सारे चीज है ना, इम्प्लीमेंटेशन, वट एवर द थिंग इज, इम्प्लीमेंटेशन, एंड्रॉयड टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, डिबग इम्प्लीमेंटेशन, ओके, ये सारा जो कोड है ना डिपेंडेंसीज के अंदर, ये सारा आप कह सकते हो ये सारा एक एक एपीआई है। क्योंकि अगर आपका जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो थ्रू एंड्रॉयड स्टूडियो, इट रिक्वायर इंटरनेट कनेक्शन।
अब इंटरनेट के बिना मैंने इंटरनेट डेटा के बिना आप बिल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये वाला सारे जो थिंग्स है वो इंटरनेट से आ रहा है। मतलब ये वाला समथिंग कॉल्ड लाइक एक्सप्रेशन। ओके, दिस इज द थिंग ऑफ व्हेन यू आर डेवलपिंग अ मच कॉम्प्लेक्स कोड लाइक APIs were much complex code. This expressly not your Android part. It's actually a host in a server, and this Android test implementation takes your code from that server and just show in your Android Studio. This is the main function. अगर तुम चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन को जीपे गूगल पे का कोई कुछ इंटीग्रेट करना, ठीक है, तो आप तो खुद से जीपे नहीं क्रिएट करोगे, राइट? तो जीपे गूगल पे का एक खुद का एपीआई होंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि वो एपीआई ऐड कर सकते हो आपके डिपेंडेंसीज के अंदर। जी हाँ, एंड्रॉइड मैंने इस वाला जीपे का एपीआई यूज करना चाहते हो, तो इसके अंदर अब जब भी वो यूज कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, ऐड कर दोगे इस डिपेंडेंसीज के अंदर, देन दैट एपीआई is for that GPay, for the connecting between your client, that is your application, and the server, that is GPay server. It's a bridge. It's create actually bridge. Okay, this is the main thing about APIs. Okay, there are lots of APIs that they are like get to feed हो गया, बहुत सारा APIs होता है, ठीक है? I think API is clear for you, or if anyone. So I think clear. So okay, so move to the next part of that program, Android. So let's for this is the main thing which I want to show you right now. Okay, um, ओके, तो जब भी आप वो वाला जो इसमें मैंने दिखाया, जब भी यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट करके जेटपैक कॉम्पोज सिलेक्ट करके जब आपने फिनिश करके प्रोजेक्ट क्रिएट किए हो, तो इस टाइप का कुछ कोड पहले से आपको मिल जाएगा, ठीक है? बाय डिफॉल्ट आपको ये वाला कोड मिल जाएगा कि यहाँ से यहाँ ये वाला चीज है, ठीक है? तब आपको क्या करना है कि आपको खुद को एडिट करना होगा सिंपली, राइट? So this is the thing. So I want to show you one by one for now. There is a three buttons. One is for code. It shows only your code part. This is a split screen. Split matlab code and side by side the output. And this is design. It only shows the output. Okay. So you can toggle over here. Okay. I am just right now over here. So in Android, I'm saying that Kotlin has a main thing like main function main is your execution point. Same as any activity, this activity class, this compact a component activity is your execution point. It starts execution from here, this class. Okay, so it started execution from here. It override a function, that is the onCreate. ऑनक्रिएट मेथड कब कॉल होता है? जब भी आपका एप्लीकेशन रन होता है, मतलब अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हो, जब भी आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करते हो, तब भी ये ऑनक्रिएट वाला हिट होता है कि चलो भाई कुछ रिस्पॉन्स आया है यूजर से, अब हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है, तो ऑनक्रिएट बाय डिफॉल्ट कॉल करता है। एंड वो वाला ऑनक्रिएट सेट कंटेंट को कॉल करता है बाय डिफॉल्ट, हमको अलग से कॉल नहीं करना हो। सेट कंटेंट की कंटेंट क्या करता है कि आपका यूआई एलिमेंट्स को आपके एप्लीकेशन के अंदर शो करने में हेल्प करता है, ठीक है? आपका यूआई जो कंटेंट है, आपके जो यूआई आपने बिल्ड किए हो, उस वाले वहां से आपके सेट कंटेंट के थ्रू वो आपका एप्लीकेशन में शो होंगे। ये बेसिक थिंग्स ऑफ वर्किंग फंक्शन ऑफ सेट कंटेंट, ठीक है? इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन का नाम देख सकते हो ऊपर एट द टॉप, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो उसके हिसाब से एक फंक्शन, एक ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट हो रखा है, ठीक है? एक कंपोजिबल फंक्शन है, ठीक है? एक फंक्शन। तो ये क्या किया, इसके अंदर एक सरफेस करके कुछ है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा सरफेस क्या होता है।
सरफेस करके कुछ है, एंड उसके अंदर कुछ मॉडिफायर है, कलर्स है, एंड वो इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल हुआ है ग्रीटिंग्स। ये वाला ग्रीटिंग फंक्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बिल्ड हो रखा है, लाइक ग्रीटिंग। तो दिस हैव ओनली अ टेक्स्ट कॉल्ड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर और एक फंक्शन है डिफॉल्ट प्रीव्यू, एंड ये भी हमारा ग्रीटिंग्स को यूज कर रहा है, ठीक है। अब हम दो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर, वो है @composable annotation एंड @preview। व्हाट इज दिस, ठीक है। सो जब भी आप जेटपैक के थ्रू, कॉम्पोज के थ्रू, एंड्रॉइड जेटपैक के थ्रू हमारा ये वाला जो कंटेंट है, राइट, जो इवेंट है हमारा, अगर जेटपैक के थ्रू आप बिल्ड करना चाहते हो तो आपका इसके ऊपर ये वाला @composable लगाना मैंडेटरी है। इस अगर ये नहीं लगाए तो एरर आएगा, टेक्स्ट वाला इसके अंदर एरर आएगा। लुक, एरर क्या है, अगर मैं इसको एरर को देखूं, composable invocation can only happen with the context of composable function। ये वाला सारे जो चीज है, अब ये भी कह सकते हो एक वन टाइप ऑफ एपीआई बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि ये कंपोजेबल तो हमारे पास बिल्ड नहीं है, राइट। हमारे इस कोड में तो कंपोजेबल हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है, तो कंपोजेबल कहाँ से है? अगर @composable लगाने से ये वाला फंक्शन ना कंपोजेबल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी ये वाला जो टेक्स्ट हम लिखे हैं तभी वो एक्सेप्ट कर पा रहे, ठीक है। मैं कंपोज के पार्ट हूँ, और ये वाला टेक्स्ट पार्ट भी जेटपैक कंपोज का एक पार्ट है, तो वहीं से ये वाला टेक्स्ट आ रहा है। अगर कंपोजेबल हटा दो तो एरर आ जाएगा कि भाई टेक्स्ट क्या है मुझे पता नहीं, राइट। तो ये वाला चीज है हमारा कंपोजेबल का। जब भी कुछ फंक्शन आपको यूआई में दिखाना हो तो उसके अंदर @composable लगाना मैंडेटरी है। हो गया। एंड उसके बाद क्या है हमारा प्रीव्यू। इसका अंदर जो ये वाला हमारे राइट साइड में हम जो देख रहा है, राइट, स्मॉल करके, जो राइट साइड में हम प्रीव्यू देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, दिस इज द मेन थिंग, this is the main things of doing the program. What is the thing? Preview means it shows your preview in your output. Whatever you want to change here, it shows here in the runtime, right? So this is the main thing using preview. Look, this composable function is called in the default preview function, right? So this is the main parts of this. Okay. So for now, just I want to delete this. Okay. Greetings. I want to delete. Look, this. Okay. And now delete this. Okay. Now I want to build a simple, very simple application for the just as a just taste how to use the thing right over here. Okay. So I just want to create a increment and decrement button. Okay. So let's first make a function. I'm showing you how to make a function in Kotlin, right? So just add keyword fun, and they make a function name as increment, incre and incre and decree. Yes, increment and decrement. It's handle the concept. Okay. Uh, okay. Uh, so now, what is the thing? Just for a minute. Okay. Just I am connecting my application and Android device to your phone. Okay, to a desktop. So just for a minute, just I want to show you how it works. Just for a minute. Okay. um, so it's connected, right? So एक चीज मैं
बताना चाहूँगा कि कैसे क्या यूज होता है। अगर आपका खुद का डिवाइस आई मीन सिस्टम अगर फास्ट है, बहुत हेवी वाला चीज़ कर सकता है, तो प्रेफर करूँगा कि आप यहाँ से एमुलेटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहली बार अगर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई एमुलेटर्स नहीं रहता है। अगर उसके बाद तुम एमुलेटर्स को डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हो फ्रॉम क्रिएट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आपका पसंद का जब भी उसका आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। पिक्सेल है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना एंड देन आपका वर्जन चूज करना होगा, राइट। मतलब कौन सा वर्जन में ऑडियो चाहिए, 8 चाहिए, 11 चाहिए, ठीक है, 10 चाहिए। तो उसके बाद वर्जन सिलेक्ट करके डाउनलोड कर देना तो इजीली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका सिस्टम उतना ज़्यादा फास्ट नहीं है मेरी तरह, ठीक है, मेरे में 8 GB का रैम है एंड i3 का प्रोसेसर है, तो इसमें थोड़ा लैग होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा खुद का जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो यूएसबी के थ्रू मैं कनेक्ट करता हूँ सिस्टम्स के साथ एंड उसके बाद मैं इजीली देख सकता हूँ हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर से कैसे क्या काम होता है। ठीक है, अगर बिल्ड करते रहो और देखते रहो कि चलो, तो इस तरह से हम एमुलेटर्स और ये वाला जो चीज़ है फिजिकल डिवाइस में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट फॉर अ मिनट। इसलिए मैं सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है। एंड्रॉइड स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब क्या बताएं, बहुत सिस्टम को लैग कर देगा। ठीक है, मैं इसको ना बंद कर देता हूँ। अरे वाइजर ओपन हुआ है। तो ये वाइजर एक सॉफ्टवेयर है, यू कैन मिरर योर एंड्रॉइड डिवाइस ओवर सिस्टम। हाँ, ये क्या है? ओके, सो देखो मेरा आईडी भी आ गया एंड्रॉइड डिवाइसेस, so I'm simply run this device, so it's connecting now. Okay, just for a minute. एक्चुअली शायद मैं यहाँ से ना फ़ोन से वाइजर को हटा दिया था, तो इसलिए नहीं आया था। ठीक है, चलो, तो ये मेरा फ़ोन का आ गया, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं फ़ोन से कंट्रोल करूँ, अगर पॉइंटर हटा दूँ तो देख सकते हो फ़ोन से भी यहाँ पर मिरर हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, तो यहाँ से दिखाना मेरे लिए ईजी रहेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली ऑफ एंड गो बैक टू एंड्रॉइड स्टूडियो। यस, so I want to make a function of this. Okay, so now look at the thing. I create a function increment decrement. So I want to make this function at the composer because we have to use the features of composable, right? So we make this function as composable and make this function name as capital I. So all function name it starts from capital letter for Jetpack Compose. Okay, so make this. So now the thing is, now I want to make this application, the two buttons are there and in the buttons in between a text are there. Okay, so I want to make a row of button, text and button. So for that reason we need to use a composable function row. Okay, pass the row function
एंड उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रो में क्या क्या चीज आएंगे. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे एक बटन आएंगे, BUTT. सिंपल जस्ट टाइप दिस थिंग, बटन आएंगे. इस बटन का काम हम बाद में कर देखेंगे, ठीक है, कैसे बटन हैंडल होता है हम बाद में देखेंगे. तो बटन के अंदर कुछ टेक्स्ट रहेंगे, राइट. टेक्स्ट, बटन के अंदर कुछ टेक्स्ट रहेंगे. तो वो टेक्स्ट होगा लाइक प्लस, अगर नहीं फर्स्ट वाला माइनस होगा एंड देन सेकेंड वाला हमारा प्लस होगा. तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ इस यहाँ से, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है. एंड देन हम क्या करें, इसको हम प्लस कर देते हैं. देखो यहाँ पर हम XML की कोई ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ है, इसके अंदर कोई लेआउट नहीं है, राइट. और इसके अंदर in between of these two button we need have a text. Let's say it's 0. Okay, now if we refresh, build and refresh from here, something happen over here, right? You can see. For the by default we can see this. Okay, what happened? Look, default preview shows nothing. Why? Because we don't call this function in the default preview. We have to call. So simply increment in CRE, बस हो गया. एंड देन अगेन बिल रिफ्रेश, अगर फिर भी है तो यहाँ पर भी अगर साइड कॉल करना होगा. So now you can see like there is a button, a big button, then a text, then again a button. Okay, as I mentioned over here, there is button. Look, this is not in a vertical, horizontal position. That means in a row. Okay, this is the thing. We handle the click later. Okay, just I need to, but it this looks doesn't good, right? So we make it better. So in row we have some parameters. If you hover on the row, you can see there is modifier. It is a modifier is a, you can say, is a thing that is can modify your elements. You can resize your elements by modifier, adding some, add some padding, merging, anything using modifier. Okay, then we have to another, there is a horizontal arrangement and vertical arrangement. These two that we are want to use to make it center. So what is the first thing? So I want to set the vertical alignment as alignment of center vertical. That means I want this text in middle, right? If I build and refresh, and I want the separate thing also, there's our horizontal arrangement. Okay, this is our for this particular row, and I want this horizontal arrangement as arrangement center. That this is for our UI application. मीन्स जब हमारा जो हम मोबाइल्स के अंदर देखेंगे तो ये वाला लाइन उसको उसके हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग सेंटर में कर देगा, ठीक है. तो बोथ साइड एंड मिडिल हो गया. तो ये सारा चीज थे हमारे पास. अगर मैं इसको अभी फोन के अंदर रन करूं, सो इट टेक सम टाइम, ठीक है. तो जस्ट वेट, to wait just for a minute. uh, तो यही चीज़ है कि एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है. अगर हाई वाला है तो जल्दी जल्दी हो जाता है, ठीक है. तो फिर भी ओके. सो व्हाट इज द एरर? इट इंस्टॉलिंग, आई एम शोइंग यू. It installing, but it shows nothing. It's a black screen. Right? Because actually I forget to call the composable function over the main thing. That I
मैंने बोला था ना कि ये वाला जो चीज़ है सेट कंटेंट क्या करता है कि आपका यूआई एलिमेंट्स को आपका एंड्रॉयड के थ्रू डिवाइस के थ्रू शो करने में हेल्प करता है। तो मैंने तो क्रिएट तो कर दिया, यहाँ पर तो डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू के अंदर दिया था, तो यहाँ पर शो हो रहा है बट यहाँ पर नहीं हो रहा है, राइट? सो इसके अंदर इसको कॉल कर देता हूँ। सो सॉरी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एंड देन build from first here, that is totally upgraded, and then build from here. Okay, ओके अब देख सकते हो कि इसके अंदर एक बटन है, दो बटन है एक्चुअली, एंड बीच में एक छोटा सा टेक्स्ट है। एक्चुअली एंड्रॉइड में ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है बट इसके अंदर नहीं दे रहा, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है? तो कैसे करें? तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा पैडिंग्स वगैरह ऐड करेंगे टेक्स्ट के, ठीक है? तो मैंने जो बोला था कि टेक्स्ट के थ्रू अगर टेक्स्ट में आप होवर करोगे इस वाला टेक्स्ट में, तो एक चीज़ सब में ज़्यादातर कॉमन होता है मॉडिफायर। तो मॉडिफायर क्या करेंगे तो टेक्स्ट के अंदर जाए, कॉमा लगाओ एंड देन ऐड अ मॉडिफायर, एंड द टाइप ऑफ मॉडिफायर इज a static class modifier dot padding. Okay, had some padding on the all side, that is 10 dot dp. If you write this dot dp first time, it shows a error, you have to import this dp. Okay, so then it makes sense, otherwise it's not work. For the first time you have to import this. uh, Review this. Okay, now it's look better, it's padding all the side of 10 pixel. And if I want to show you in our application, then you can see. बिल्ड हो गया। ओके, अब देख देख सकते हो कि थोड़ा बैक पैडिंग्स है हमारे इस एंड बीच के अंदर। तो हमारा जो जीरो है उसके ऑल साइड्स, राइट, थोड़ा पैडिंग है। अब चलो फंक्शनलिटी को हैंडल करते हैं, राइट? कैसे फंक्शनलिटीज हैंडल होता है, ठीक है? तो या so first, in Android, in Compose actually, not in Android, first make a variable like var, var because we use var because the value of the variable, like it's called count, cnt, is equal to 0. Okay, the variable value is changed for the behavior of the user, right? So it's 1 2, it's changeable. If we use val over here, it doesn't make sense, right? So use var, and then in the on click बटन में एक फंक्शन होता है ऑन क्लिक का मतलब ये होता है कि अगर क्लिक करे कुछ बटन के ऊपर तो कुछ होना चाहिए, तो यही हैंडल करता है ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक के अंदर हम जाएंगे एंड सिंपली ये माइनस वाला बटन है, तो हम क्या करेंगे माइनस सॉरी सी एन के माइनस में, तो हम काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे। एंड अगर प्लस में आएंगे, अगर प्लस बटन हिट होता है तो प्लस को हम काउंट को हम प्लस कर देंगे, ठीक है? यही तो बेसिक होता है, बट एक्चुअली आई एम सेइंग दिस इज द रॉन्ग। इफ आई मेक इट and show you your Android application, it's built. Wait for a minute, you're installing. Mm, okay, okay. If I click some buttons, right, it's clickable, right? I think you show you can see that this clickable is there. I click on the button, but the text is not changed because of it's zero. Okay, I'm change it to I'm says you at the rate cnt. If I make this and run again,
go over here. If I click the button, right, then it's nothing, zero change नहीं हो रहा, but क्यों? तो ये चीज है कॉम्पोज के अंदर, ये दिमाग में रहना जरूरी है कि अगर जब भी एक कॉम्पोजिबल फंक्शन हमने क्रिएट करते हैं, राइट, तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी एक कॉम्पोजिबल फंक्शन कॉल होता है, तब भी जब भी कॉम्पोजिबल नहीं, जब भी कुछ यूजर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है, मतलब कोई स्टेटस देता है, राइट, लाइक कुछ बटन क्लिक या फिर यूआई स्क्रॉलिंग, दिस काइंड ऑफ फीचर्स आर इफ यूजर हैपन, अगर जब यूजर करता है दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो क्या होता है, कंपोजिबल फंक्शन ना बार बार कॉल होता है। तो मैंने अगर इस वाले बटन को, अगर माइनस को क्लिक किया हूँ, तो पहले टाइम तो काउंट का वैल्यू 0 था, ठीक है, जब भी ये वाला बटन हिट हुआ, क्लिक हुआ, तो माइनस माइनस भी हुआ है, और वो शो करने के बाद वो फिर से ना काउंट 0 हो जा रहा है। एक्चुअली हम देख नहीं पा रहे, बट यही होता है कि जब भी ये फंक्शन कॉल करता है खुद को, तो वैल्यू रीअसाइन हो जाता है, 0 में 0 हो जाता है। तो इसलिए हम इसको हम नहीं कर सकते। By doing only this kind of variable declaration, we have to use another thing, that is remember. So count by remember, remember. So remember take a parameter called mutable state of. Okay, so let's by mutable state of, and you now you can value assign a value over here. मतलब इसके अंदर हम यहाँ पर क्या किए कि हम एक काउंट वेरिएबल बनाए, var टाइप का, वो एक रिमेंबर है, रिमेंबर टाइप का वेरिएबल है। इसका मतलब ये खुद के स्टेट के हिसाब से वो वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू पर रिमेंबर कर सकता है, ठीक है। इसका इनिशियल वैल्यू है 0, म्यूटेबल स्टेट ऑफ वो 0 में असाइन कर देता है काउंट का वैल्यू बाय डिफॉल्ट, और वो पिछला स्टेट का वैल्यू रिमेंबर करके रखता है। तो यही ये चीज हमें कंपोजिबल के अंदर कोई भी अगर वेरिएबल के साथ काम करना है, वो अगर वो चेंजेबल है, उसके साथ कुछ कम करना है, तो इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, काउंट बाय रिमेंबर, then mutable state of, and the value of the variable. Okay, this is the main thing that I want to show you. And now if I run this program, first build from here, and run from here. Okay. Oh, oh no 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 no, please no, ये डिस्कनेक्ट हो गया। यूएसबी डिस्कनेक्टेड हो गया था, तो इसलिए वो एमुलेटर में रन हो जा रहा था। अगर मैं एमुलेटर चल गया तो पूछो ही मत। ओके, फिर भी तो नाउ देखते क्या होता है, राइट। तो लॉन्ग सक्सेस। So now if we click the plus button, now you can see the changes. If I click once and it's incremented, right? And if you click this, it's decremented. Only for this one, this remember. It's remember the previous state actually. Otherwise, this doesn't happen. पिछले बार क्या हो रहा था कि सिर्फ 0 ही रह जा रहा था, राइट। तो कंपोजिबल का यही फीचर है कि वो खुद को बार बार कॉल करता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स बिहेवियर। अगर कुछ बटन्स पर क्लिक हो तो कंपोजिबल फंक्शन खुद से रीसेट हो जाता है, और जो काउंट वेरिएबल है वो भी 0 हो जाएगा, राइट। तो रीसेट हो जा रहा मतलब, तो अगर कुछ वैल्यू के हिसाब से तुम रिमेम्बर कर रखते हो, तो उसके प्रीवियस जो वैल्यू है वो सेव कर लेता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो हमारा जो ये यूआई है, सो उस हिसाब से काम कर रहा है, राइट। तो दिस इज द मेन थिंग दैट इज, इसमें ही आपको दिखा दिया कि कैसे एक टेक्स्ट वाला चीज करते हैं, बटन्स को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो
So this is the main thing. Okay. So nothing is there already. So now if you have any problem regarding the application or anything, so you can ask and ठीक है यही होता है एंड्रॉइड के साथ एंड्रॉइड काम से ठीक है फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क एंड अदरवाइज वी कैन रैप द सेशन तो I think Gaurav, no one have any doubt, so we can wrap now. Okay, so that was a great session, Niranjan. So everyone should complete their pathway so you will get a certificate from our side too. And apart from this, if you have any questions regarding Android development and other stuff and Compose Cam, just shoot them at our Android facilitator. We'll be more than happy to answer them. Okay, Gaurav, I want to show us something. Actually, तुम लोग क्या कर सकते हो कि इसमें ना एंड्रॉइड का एक कोर्स या यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला जो है कॉर्डिन बेसिक्स ये मतलब तुम्हारा एक्सएमएल के थ्रू है ये वाला चीज़ है एक्सएमएल के थ्रू बट हम लोग इस बार तो कंपोज करेंगे राइट तो यहाँ पर जाना देन सॉल्व करके व्यू एंड्रॉइड कोर्सेस ये एंड्रॉइड का खुद का कोर्स है तो यहाँ पर क्लिक कर पता नहीं कुछ स्लो अरे कुछ हो गया कुछ हो नहीं रहा नेट सही चल रहा है हाँ अच्छा आ गया तो देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों कोर्स है कि न्यू एंड्रॉइड बेसिक विथ कॉम्पोज ये वाला हम अभी करेंगे तो स्टार्ट कोर्स करके यहाँ से तुम लोगों को ये वाला सारी चीज़ कंप्लीट करना होगा एक एक करके अगर करते हो तो गौरव ने बोला कि सर्टिफिकेट हमारे तरफ से आपको मिलेगा चार्टो अभी तक चार्ट 4 pathways are there so first one is basic application right look you need to complete all the things okay so first the introduction to Kotlin as I mentioned you can see also where you set up your Android studio and building a basic layouts ठीक है फर्स्ट पाथवे हम पहली सेशंस के अंदर कर दिया ठीक है आपको खुद को भी ये करना होगा और गौरव हम क्या कर सकते हैं कि एक फ्रॉम के थ्रू इसका ट्रैक भी रख सकते हैं राइट अब आपको खुद का वो बैचेस भी मिलेगा गूगल की तरफ से तो ये सारे एक एक करके एक्सप्लोर करना इसके अंदर खुद का कोड लैब भी होता है मान लो कि आप लोग इंट्रोडक्शन टू कोडिंग में गया ठीक है तो आपको एक एक करके करना होगा कि कैसे कंपोज क्या है वीडियोस है इसके अंदर तो चाहे तो आप देख सकते हो कोड लैब्स होता है कि कहाँ से कहाँ तक क्या क्या करना है उसके बाद एक क्विज होता है ठीक है क्विज अगर आप पास करते हो क्विज में तो आपका ये वाला जो बैच है वो आपको मिल जाएगा ठीक है तो यही बोलना था कि आप ये भी सारा कंप्लीट कर सकते हो फर्स्ट यूनिट के अंदर So guys, always check out your badges in your developer profile Hmm. after completing all the pathways. Yes, जैसे कि मेरा Okay, so anyone got any queries? So I guess Niranjan over queries and then we are good to wrap up our session for today, right? Yes, we can. Okay, everyone, that was nice having you all. See you in the next. Thank you. Okay, guys.